تشریف رکھیں. میں شکر گزار ہوں خیر کا کہ جب بھی ان کو میں اپنا ٹاپک بتاتا ہوں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی گیت ضرور ہوتا ہے. آج 2 گیت میں اس کے مطابق گائے. ایک تو تھا یسوع دا پلڑا پیارا پیارا اور دوسرا یار کی بیٹی کا زندہ کیا جانا. آج کا میرا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، مردوں کو زندہ کرنا. یہ میرا ٹاپک آج کا. خدا یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو کوئی بیماری ایسی ہے جس کا علاج خدا یسوع مسیح نے نہیں کیا. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے مردوں کو زندہ کرنا. تو وہ بھی خدا یسوع مسیح نے مردے بھی زندہ کر کے دکھائے. آج بھی خدا وہی کام کرتا ہے. خدا یسوع مسیح جب یہ سارے کام کرتا تھا، کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، کچھ لوگ باتیں کرتے تھے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کفر باپ کے خلاف یا بیٹے کے خلاف کیا جائے گا، بولا جائے گا، اس کی معافی ہے، لیکن روح القدس کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کی کوئی معافی نہ زمین پہ نہ آسمان پہ. کیونکہ یہ سارے کام آج روح القدس کرتا ہے، لیکن آج بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پادری نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا، اس کے ساتھ ضرور ابلیس کی تصویریں ہیں، اس نے ضرور تہیا کیا ہوا ہے، اس نے ضرور چلا کاٹا ہوا ہے. ہم روح القدس کو کیا کرتے ہیں؟ نیچا دکھانے کو، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ نہ زمین پہ اس چیز کی معافی نہ آسمان پہ معافی ہے. ہر بات کو کرتے ہوئے سوچا کریں. سنڈے کو میں نے کچھ حوالہ جات بت پرستی پہ کیے. مقدسہ مریم کی عزت ہم کرتے ہوئے ہمارے دل میں ہے. وہ یسوع کی ماں تھی، لیکن بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہم نے یہ باتیں کی تھی. کلام بتاتا ہے، کلام سے آ کے میں نہ بات کرتا ہوں نہ میں کروں گا، لیکن آپ نیٹ کو دیکھ لیں تو جو لوگ ریگتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے تھے، لوگ تو ان پہ ایسے ایسے باتیں کر رہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ لانتی کہہ رہے، ملاؤن کہہ رہے، مختلف باتیں کر رہے ان کے خلاف کہ یہ لوگ خدا یسوع مسیح کو ذلیل کر رہے، بائبل مقدس کو ذلیل کر رہے، خدا کے کلام کو ذلیل کر رہے، یہ مسیحیت کیا مذاق اڑا رہے. جبکہ خدا کا کلام کہیں یہ باتیں نہیں بتاتا. میں نے بھی یہ باتیں جب یہاں میں کہ یہ میسج میرا نیٹ پہ ہے، بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، لیکن اس کی مخالفت میں ایک بھی کمنٹس نہیں آیا، کیونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے. میں بائبل سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. اگر عزت کرنی ہے تو مقدسہ مریم کی عزت دل سے کرے. یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کے بت بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دے. کہاں پہ لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دکھا دے. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. مخالفت ہم بت پرستی کی کرتے، اور کسی چیز کی کوئی ہم کبھی نہیں. نہ یہ کلام ہمیں اجازت دیتا ہے
मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, खुदा यीशु मसीह की माँ थी, और उसके बारे में लिखा है कि हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, और हम कहते हैं, लेकिन कभी भी हम सजदे नहीं करेंगे। सजदों के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह, जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, सलीब पे चढ़ा हो, उसने खून बहाया, वो इसीलिए जमीन पे आया। आज हम किन राहों में चल पड़े, हम रीखते हुए, क्या हम मसीहत को, पहले ये लोग हमें बातें करते हैं कि आप तो बुतों की पूजा करते हैं, इस बात से आके फिर हम भी खामोश हो जाते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये चीजें हमसे हट जाएं तो फिर हम दिलेरी से कह सकते हैं कि हम बुत परस्त नहीं हैं, हम ऐसे काम नहीं करते। आए खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखते हैं। मरकस 5 बाब और उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। बैठे रहे, अभी आप बैठे हैं, बैठे रहे, कोई बात नहीं जी। पढ़े, कोई पढ़ेगा? जब वो कश्ती पर बैठकर पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास क्या हो गई? जमा हो गई। क्योंकि खुदा यीशु मसीह में ये कुदरत थी कि वो जहां भी जाता था लोग सुनते ही कि खुदा यीशु मसीह आ गया है, जमा हो जाते थे। वो देखने के लिए आते थे, वो उसकी बातें सुनने आते थे, वो खुदा का कलाम सुनने आते थे, वो मोजज़ात देखने आते थे, वो अपनी बीमारियों से रहाई पाने के लिए उसके पास जमा होते थे। देखा, जैसे ही वो कश्ती से उसके पार गया, वहां पे पहुंचा तो बहुत सारी भीड़ वहां पे जमा होना शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए। यीशु आ गया, यीशु आ गया है, और लोग वहां पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, पढ़े। अब इबादत खाना का सरदार जो था वो उसके पास आता है, उसके पास आके उससे इंतजार करता है। क्या इंतजार करता? पढ़े जरा जल्दी जल्दी। इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याईर नामी आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। उसके कदमों पर गिरा, और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इबादत खाने का सरदार है और वो मुखालफत भी उसकी हो सकती है, लोग उसके खिलाफ बातें भी कर सकते हैं कि ये तो खुद सरदार है और ये आके खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर रहा है, वो यहाँ पे आ गया है। आज अगर हम कई बार हम भी ऐसी चीजों को देखते हैं, फलाना पादरी फलाने को दुआ कराऊं गया, फलाना जी खुद बड़ी दुआ करता फलाने, तो यही बातें हमारे दिलों में बसती है और हम खुदा से पीछे रहते हैं, हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें घमंड है, गुरूर है, और इन्हीं बातों से हम खुदा से दूर रह जाते हैं। यहाँ पे लिखा सरदार जो उस इबादत खाने का सरदार है, वो यीशु के पास आके उसके कदमों में गिरता है और उसे क्या कहता है? पढ़े जरा जी। और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मर बहुत मिन्नत की, उसके कदमों में गिर गया और मिन्नत करने लगा कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, तू मेरे साथ चल और उसके सर पे हाथ रख दे ताकि वो बच जाए। ये उसकी इंतजार थी, वो मिन्नत कर रहा है कि मेरी बेटी मरने वाली है, तू मेरे साथ चल और उस पर जाके हाथ रख दे। तू हाथ रखेगा तो मेरा ईमान है कि मेरी बेटी बच जाएगी। खुदा यीशु मसीह बगैर कुछ पूछे, बगैर कोई बात किए, बगैर बहस किए उसके साथ चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। और जब रास्ते में जा रहे एक और वाकया हो जाता है, जब वो बहुत सारी भीड़ उसके पीछे जा रही थी कि अभी खुदा यीशु मसीह उस घर में जाएगा, उस बच्ची को जिंदा करेगा और हम भी उसको देखेंगे। ये सारे लोग देखने के लिए जा रहे थे उस बच्ची को कि कैसे खुदा यीशु मसीह उसको शिफा देगा। जब ये उस पर हाथ रखेगा, उस पर दुआ करेगा, उसको हुक्म देगा उसकी बीमारी को, तो वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी भीड़ के बारे में लिखा है कि वो उसके पीछे चल पड़ती है और खुदावंद यीशु मसीह उनके आगे आगे जाते हैं। और वहां एक और वाकया हो जाता है, जिंदा करने बचाने के किसको जा रहे हैं? एक बच्ची को, एक बच्ची बीमार है, उसके बाप ने एक इल्तिजा की, एक मिन्नत की कि मेरे साथ चल, मेरी बच्ची बीमार है, तो उसके
हाथ रखेगा तो मेरी बेटी बच जाएगी, तू मेरे साथ चल। खुदावंद यीशु मसीह उस बच्ची को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक औरत जो है जिसका ईमान बहुत बड़ा था, उस बीमार थी 12 बरस से, उसको खून बह रहा था, वो बहुत सारे तबीबों के पास आई, बहुत सारे हकीमों के पास गई, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई और बहुत सारा रुपया पैसा उसने उस पर खर्च किया अपनी बीमारी पर। लेकिन जैसे जैसे वो मेडिसिन खाती थी, जैसे जैसे वो इलाज करवाती थी, वो और ज्यादा बीमार होती जा रही थी, उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। सारी दौलत, सारा रुपया उसने अपनी बीमारी पर लगा दिया। अब वो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तबीबे आज़म को देखती है और कहती है, दिल में ख्याल करती है कि मैं सिर्फ इसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। रुपया पैसा सारा बेकार हो गया, गर्क हो गया, पैसा लगा लगा के तंग आ गई। आज कई बार हम भी यही कुछ करते हैं, डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, रुपया पैसा लगाते हैं, हकीमों के पीछे जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। कभी आप तबीबे आज़म के पास तो आके देखें, वो आपको शिफा देने की ताकत रखता है। उस औरत ने क्या किया? उसने दिल में सोचा कि तबीबे आज़म जा रहा है, मैं इसके पल्लू को छूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी, और उसने वही कुछ किया। वो पीछे से गई और उसने जाके खुदावंद यीशु मसीह की पेशाब को छू लिया, और जैसे छुआ खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से एक कुव्वत निकली। जैसे कुव्वत निकली, खुदावंद यीशु मसीह को पता चल गया कि किसी ने मुझे छू दिया है। छू तो सारे रहे थे, सारे उसके साथ लग रहे थे, एक भीड़ में सारे लोग एक दूसरे के साथ लग रहे होते हैं, लेकिन उस औरत ने ईमान के साथ जब उसको छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत नाज़िल हो गई, शिफा नाज़िल हुई। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, पढ़े जरा जी, आगे निकल गया थोड़ा सा, जल्दी जल्दी। फिर औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे फायदा ना हुआ था, जी। बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को क्या कह रहे, छू लिया। जैसे छुआ उसको शिफा मिल जाती है। उसने महसूस किया कि जैसे मैंने पल्लू को छुआ है मुझे शिफा मिल गई है, मेरा खून बंद हो गया है, मेरी बीमारी भाग चुकी है, क्योंकि मैंने उस खुदावंद यीशु मसीह को छू लिया है जो मुर्दों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। क्योंकि एक मुर्दे के लिए वो जा रहा है, बच्ची बीमार है, वो मरने वाली है और वो उसको शिफा देने के लिए जा रहा है। तो औरत का ईमान इतना बड़ा था कि उसने भी जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह से शिफा लेकिन उस औरत ने ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को छुआ, इसलिए उसके अंदर से शिफा नाज़िल हुई। पढ़े आगे थोड़ा सा। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो मुझे ईमान के साथ छुआ है और उसने शिफा हासिल कर ली है। आज भी अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे साथ बात की कि भाई साहब आपको कैसे पता चल जाता है? आप गुजरते गुजरते बता देते यहाँ पे बदरुए हैं, यहाँ पे अबलीस बसता है,
मैं क्या ये खुदा की कुदरत है। जब मैं वहां से गुजरता हूं, आज खुदा ने अपने खातों के अंदर ये कुव्वत डाल रखी है। जब वो कहीं से गुजरते हैं तो उनके जिस्म से जब कुव्वत निकलती है, उनके अंदर से जब वो शुआएं निकलती हैं, जो रूह कुदस उनके साथ होता है, तो उनको उसी वक्त महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई इब्लीस तस्वीर मौजूद है। ये खुदा के काम है। खुदा आज भी अपने लोगों को वही कुव्वत, वही ब्लेसिंग देता है। हम महसूस नहीं करते, हमें महसूस करने की जरूरत है। ना यीशु मसीह को पता चल गया मुझे ईमान के साथ छुआ है, किसी ने मुझे यकीन के साथ छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से शिफा निकली है। इसलिए मुझे पता है कि किसी ने मुझे छुआ है। इसलिए वो को छुआ है तो मैं शिफा हासिल कर चुकी हूं। तो खुदावन ने कहा, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, सलामती से लौट जा। खुदावन यीशु मसीह ये अल्फाज कहते हैं, जब हम उसको छू के साथ उसके पास आके तो देखें। हम ईमान के पास उसके पास आते नहीं है, हमारा ईमान तो कहीं और होता है। बहुत हम अगर बयान ऐसा तो हम डॉक्टरों के पीछे ज्यादा भागते हैं, हकीमों के पीछे भागते हैं। किसी ने कह दिया ना कि सूर में भी डॉक्टर उठी भज जाना, पैसा बड़ा है। जो डॉक्टर, जो हकीम, जो तबीबे आजम हमारी जिंदगियों में रहता है, हमारे दिलों में रहता है, हमारे घरों में रहता है, कभी उससे भी कह के देखें कि खुदा तो मुझे शिफा दे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, खुदा मेरी बीमारी नहीं खत्म हो रही, मेरी लाचारी नहीं खत्म हो रही, मेरी बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, मैं क्या करूं, खुदा तो मुझे छूने दे अपने आप को। उसको छू कर देखें, तो जब उसको छुएंगे तो फिर उसके अंदर से शिफा निकलेगी और फिर आप शिफा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज भागते रहे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पढ़े आगे, इससे आगे पढ़े, जरा आगे चले जाए। और फिर जब वहां पे अभी ये सारे मौजूद थे तो वहां पे एक शख्स आता है और यार को आके क्या कहता है जी? हाँ जी, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को ज़हमत ना दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी तो मर गई, लेकिन उसको ये नहीं पता जो उसके घर में जा रहा है वो तो मुर्दे जिंदा कर सकता। वो तो यहाँ पे खड़ा होकर कह दे कि बेटी उठ जा, तो बेटी उठ जाएगी। तो ऐसे आगे पैगाम दे रहा है। और खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों पर। जब वो बात कर रहा था कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को रहने दे, और ये सारी बातें खुदा यीशु मसीह सुन भी रहा है, लेकिन अनसुनी कर रहा था। वो सुन रहा है लेकिन अनसुनी करके क्या कहता है जी? पढ़े जरा। उस पर यीशु ने तवज्जो ना दी। कई बार हमारी बातों पर भी यीशु तवज्जो नहीं देता। जब हम गड़बड़ करते हैं और काम भी कर लेते हैं, दूसरे काम भी करते हैं और यीशु के पास भी आते हैं, तो यीशु फिर हम पे तवज्जो नहीं देता। ये ज़हन में रखें, यहां पर भी यही कुछ हो रहा है।
यीशु मसीह जा रहा है उसको शिफा देने के लिए, उसकी बेटी को जिंदा करने के लिए। वो शख्स आके कह रहा है तो मार के ये छट पड़े होने यीशु ना बुला। हम भी कई बार यही करते, बस और जरूरत नहीं है, दवाइयां पे जरूरत हो और नहीं दवा असर करिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते बड़िया दवावां कराइया जी और फिर हकीम को ही चले गए। क्या होता है जब हम हकीमों के पास, डॉक्टर के पास जाके रुपया पैसा लगाते, कुछ भी हासिल नहीं। अगर ईमान के साथ उससे खुदा के पास आ जाए जो जिंदा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, हर बीमारी बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है जिसका इलाज खुदा यीशु मसीह ने ज़बान से कर दिया। क्या करें? बीमारी चली जा, मिर्गी चली जा, फाले चले जा। हर बीमारी को हुक्म देता था और सारी बीमारियां जाती नहीं। और आज भी तो वही खुदा है, आज भी वही काम करता है, आज भी वो अपने हाथों के वसीला से ये सारे काम करता है। कभी ईमान के साथ ये सारा कुछ करके तो देखें। दाऊद यीशु मसीह ने उस पर तवज्जो ना की, ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा कर लो जो बातें करनी है, क्योंकि उसे पता था कि मैंने जाके उसकी बेटी को जिंदा कर देना है। हाँ जी, पढ़े आगे। खौफ ना कर, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि क्या है, सोई हुई है। वो तो जिंदा है, वो तो सोई हुई है, हालांकि वो मर चुकी है। पैगाम आ गया है कि मर गई है, लेकिन वो कहता है नहीं, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सो गई है। हाँ जी, कुछ खास लोगों को लेके वो चलता है, उस घर में जाता है। और जब उस घर में जाता है तो देखता कि लोग बैन कर रहे हैं। उस वक्त के दौर में लोग जो थे वो महल रोने वालों को बुलाते थे। कभी ये सुना आपने? बाइबल मुकद्दस में ये बातें हैं कि जब कोई मर जाता था तो बड़े कारीगर बुलाते थे, रोने वाली औरतें, बैन करने वाली औरतों को हायर किया जाता था और वो आके ऐसे ऐसे बैन करती थी कि लोग रोते थे। मैं अपनी जिंदगी में मैंने भी कई बार देखा है। मेरी अपनी फैमिली में मेरे ताया फौत हो गए हैं। वो अक्सर जब कहीं जा रहे होते थे रोने के लिए तो मेरी माँ को, मेरी चाचियों को, सबको समझा रहा होता था उठे जाके इंज घुंड कटना है, इंज करके बयान करना है। वो रास्ते में उनको सिखाता था। यही काम यहाँ पे हो रहा है। उसके वो लोग जो बैन कर रहे हैं उनको महल लोगों को बुलाया हुआ था और वो उस घर में रो रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, वो बैन कर रहे थे ताकि लोग और रोए इस बच्ची के लिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह जाके क्या करते हैं? जी पढ़े। तुम क्यों गुल मचाते हो? क्योंकि वो सारे वो थे जो हायर किए गए थे, जो वहां पे शोर शराबा कर रहे थे, जो वैसे ही बयान कर रहे थे। उनका उस बच्ची के साथ कोई भी तल्लक नहीं था। अभी साबित हो जाएगा क्यों नहीं था। कि पढ़े जरा। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। तो क्या हुआ? वो लोग हंसने लगे क्योंकि वो कारीगर थे, रोने के मास्टर थे। वो तो मसनूई रो रहे थे ना। सही रोने वाला कभी उसके चेहरे पर हंसी नहीं आती। एक मुर्दा सामने पड़ा हो, लाश पड़ी हो और कोई रो रहा हो और वो किसी बात से हंस पड़े, ये तो मजाक वाली बात है। क्योंकि ये लोग वो लोग थे जिनको हायर किया गया था, जो मसनूई रो रहे थे, लोगों को रुलाने के लिए बैन कर रहे थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह की ये बात सुनकर वो हंस पड़े, हंसना शुरू हो गए। और खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? कि पढ़े आगे। उसने सबको बाहर निकाल दिया, जो मसनूई रोने वाले थे, जो गुल गुबारा करने वाले थे, जो शोर शराबा करने वाले थे। खुदा ने यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया और उसके बाप और उसकी मां को लेके अंदर चला गया। और जाके क्या किया उसने? जल्दी अपने साथी को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तिकनिया कौमी, जिसका तर्जुमा है ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। ये उसका हुक्म था। उसने जाते ही लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, ए लड़की, मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ जा। तो लड़की क्यों ना उसका हुक्म मानती, बदरू भाग जाती है तो रूह
उसकी मनाहत थी। उस लड़की की रूह उसी वक्त उसके अंदर दाखिल हो गई। इलाज मेरे और आपके यीशु के पास है नहीं है, फक्त ईमान के साथ उसके पास है। ईमान से उसका पल्लू छुएं, ईमान के साथ कहें कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी मरने वाली है, तू वो सारे के सारे हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। खुदावंद यीशु मसीह जहां पे आ जाता है वहां अजीब तरीके से माजरे होते हैं, मौजूद होते हैं। खुदा अजीब तरीके से काम करता है। फक्त हमें ईमान रखने की जरूरत है, उस पर ईमान रखें, ईमान से उससे मांगे, ईमान से उसको छू लें, तो आपकी बीमारियां, आपकी लाचारियां, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां सब की सब एक पल में खत्म हो सकती हैं। लेकिन आपके ईमान पे, अगर आपका ईमान नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो मर्जी कर लें, जिसकी मर्जी पूजा कर लें, आपको कहीं से शिफा, कहीं से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या कभी हमने यीशु को छूने की कोशिश की है? कभी उसको हमने अपने घर में दावत दी है? कभी अपनी जिंदगी में उसको दावत दी है? क्या हमारा मरकज सिर्फ वही है या कहीं और भी हम बातें करते हैं? आज अगर कहीं और बातें करते हैं तो सिर्फ यीशु की तरफ ध्यान देना शुरू करें, तो फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे काम होंगे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।